Okay. Registration under any taxation system is necessary for identification of taxpayers, ensuring tax compliance in the economy. Under indirect tax regime, without registration, a person can neither collect tax from his customers not claim any ITC. आपको ध्यान होगा ITC में कि only registered person can claim ITC. Any taxable person is liable to pay tax, but only a registered person can take ITC. फिर advantages of registration under GST regime will confer following advantages to the business: legally recognized as supplier of goods or services, proper accounting of taxes paid on the input goods or services which can be utilized for payment of GST due on supply of goods or services or both by the business, legally authorized to collect tax from his purchases and pass on the credit of the taxes paid on goods or services supplied to purchasers or recipient. No centralized registration. पहले होता था सर्विस टैक्स में कि बेसिकली इट इज अ पैन इंडिया थिंग, तो तुम कहीं पर भी रजिस्टर करा लो. अब वैसा नहीं है. अगर आपके अलग अलग स्टेट्स में काम है तो आपको हर स्टेट में रजिस्टर कराना है. आपको हर स्टेट में रजिस्टर कराना है. सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है. इट इज अ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन. आइए, अंडर जीएसटी registrations need to be taken state wise. That is, there are no centralized registrations under GST. A business entity having its branches in multiple states will have to take separate state-wise registration for the branches in different states. One registration per state. हर स्टेट में लेकिन एक ही काफी है. आपकी किसी स्टेट में एक से ज्यादा ब्रांचेस वगैरह हैं, कंपलसरी नहीं है कि आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराएं. आप चाहें तो आप करवा सकते हैं. आइए, further within a state, an entity with different branches would have single registration, wherein it can declare one place as principal place of business and other branches as additional place of business. Separate registration in respect of multiple places of business within a state. अगर आप चाहें तो separate places of business के लिए आप अलग अलग registration करा सकते हैं. जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा एक चेंज बताऊं. पहले ये बोला जाता था अगर डिफरेंट वर्टिकल्स हैं तो आप डिफरेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. अब बस लिखा हुआ है कि अगर अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है तब भी आपको अलग अलग कराना अलाउड है. मतलब आप सेम बिजनेस भी अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू करते हैं तब भी आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. पहले वो अलाउड नहीं होता था. आइए, further within a state, an entity with different branches would have single registration, wherein it can declare one place as principal place of business and other branches as additional place of business. Separate registration in respect of multiple places of business within a state. However, a business entity having separate places of business in a state may obtain separate registration for each of its place of business. Otherwise, a given PAN-based legal entity would have one registration number, goods and service tax identification number per state. No tax specific registration. ऐसा नहीं है कि CGST के लिए अलग, SGST के लिए अलग, ये वो पूरे के पूरे GST के लिए एक ही कराना है. Who are the persons liable for registration under GST law? Every supplier liable to be registered if aggregate turnover in financial year exceeds 20/10 lakh in special category state. तो ये बिल्कुल पहली चीज है जो आई थी, बट ठीक है. बेसिकली अगर तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल 10-20 लाख को क्रॉस कर जाता है तो तुम्हें इस साल रजिस्ट्रेशन कराना है. ओके, क्या लिखा है? Every supplier liable to be registered if aggregate turnover in financial year exceeds 20/10 lakh in special category states. Every supplier will be liable to be registered under this act in the state or union territory other than special category states from where he makes a taxable supply of goods or services or both, with aggregate turnover in a financial year exceeds rupees 20 lakhs. However, where such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the special category states, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds 10 lakhs. यानी कि अगर आप नॉर्मल स्टेट्स में हैं तो आपके 20 लाख, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हैं तो 10 लाख. अब यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट आता है, मेरी एक ब्रांच नॉर्मल स्टेट में है और एक ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, तो मेरे पे क्या अप्लाई होगा? 10 लाख वाला अप्लाई होगा. तो आपके लिए 10 लाख वाला अप्लाई होगा. ये सेम चीज हम लोगों ने कॉम्पोजिशन के टाइम पर भी डिस्कस करी थी. ओके, फिर उसके बाद आइए, however the government may at the request of special category states and on the recommendation of council enhance the aggregate turnover from 10 to 20 and subject to this. Special category states क्या क्या हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड for the purpose of 22. we'll see. अभी ये अच्छे से इसने bifurcate करा हुआ है आगे. Thus the threshold limit of 10 lakh is applicable for the state of Manipur, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. ये आगे अच्छे से क्लासिफाइड है तो अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है इधर से. It must be noted
that if a person having place of business in different states across India has one branch in any of the states being Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura, पूरे देश की लिमिट आपकी 10 लाख बन जाएगी. ओके, फिर ये नई चीज आई थी 40 लाख. ये नई एक और लिमिट आई थी 40 लाख. ये किन के लिए आई है? एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई है. एक बारी पढ़ते हैं, आइए. It must be noted that the central government wide notification this has provided that any person who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 lakhs. ठीक है, exclusive supply of goods, this is important, please ध्यान रखिएगा. exclusive supply of goods ही allowed है. अगर आप exclusively goods supply करते हैं और आपका तो आपके लिए 40 lakhs की लिमिट बन जाती है. Whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 lakh is exempt from obtaining registration. However, the exemption is not applicable for the following persons. Persons required to take compulsory registration. जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, कुछ लोगों को कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना, उन पे फिर ये 40 लाख वाली लिमिट भी अप्लाई नहीं करती ऑब्वियसली. Persons engaged in making supplies of goods being ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa, पान मसाला एंड टोबैको. तो पान मसाला टोबैको तो समझ में आते हैं, आइसक्रीम से क्या दुश्मनी है पता नहीं, बट बहुत सारी जगहों पर ये है. बेसिकली इन लोगों को तो अगर आप ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपके ऊपर भी 40 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है. ओके, the person engaged in making intrastate supply in the state of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Sikkim, Telangana, Tripura, उत्तराखंड, ये कुछ स्टेट्स हैं जिनको इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया 40 लाख वाली लिमिट से. इन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया 40 लाख वाली लिमिट से. तो इन पे सर कौन सी अप्लाई करेंगे? अगर तो ये वो 10 लाख वाली लिस्ट में थी तो 10 लाख वाली लिस्ट में नहीं थी तो फिर 20 लाख वाली. तो आगे अगेन अभी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको आगे जाके एक टेबल में बड़े अच्छे से इसने बाइफरकेट करा हुआ. ओके, तो पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, अगर आप वॉलंटरली करवा रहे हैं तो क्यों ही कोई आपको रोकेगा. प्रेजेंट पोजीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स इज एज फॉलोज. सीरियल नंबर 1, 2 and 3 अप टू 10 lakhs. तो इफेक्टिवली ये है, 10 lakhs तक की लिमिट्स हैं. ये आप नीचे भी पाएंगे, वैसे आई थिंक नीचे से ही पढ़ लो. तो 10 लाख की लिमिट है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में. फिर 20 lakhs तक की लिमिट्स है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना में. और स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakh फॉर सर्विसेज, 40 lakhs फॉर गुड्स, जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर्स. एक सेकंड, एक बारी ये पढ़िए प्लीज आप लोग. हाँ जी मैम बताइए. तब भी अलाउड होता नहीं, क्योंकि नहीं होता, मतलब वहां पे सिर्फ इंटरस्टेट लिखा हुआ है, बट इंटरस्टेट वगैरह सब. चलिए, बस एक चीज रखिएगा ध्यान कि 40 लाख वाली लिमिट इज फॉर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स. बाकियों के लिए ये 40 लाख वाली लिमिट नहीं है. तो आप अगर आप सर्विस हैं या पार्टली गुड्स एंड पार्टली सर्विस है तो आपके ऊपर वो 10-20 वाला ही गेम है. अगर गुड्स वाला भी सीन है तो 10-20-40 ये तीन अलग अलग पॉसिबल हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. अब इस पर आते हैं जिससे रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या काउंट होगा. हमने बोल तो दिया कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर अगर 10-20 लाख क्रॉस कर रहा है तो आपको कराना है, बट एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? Aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supply on which tax is payable by a person or on RCM. ये हमने पहले भी डिस्कस करा था, एकदम बकवास बात है. आप RCM पे as a recipient you are paying tax. जैसे कि normally what happens, supplier recipient, हमारे केसेस में मैं supplier और आप लोग recipient. मैंने आपको 1 लाख रुपीस का बिल दिया तो 1 लाख प्लस 18% 1,18,000 का बिल दिया. 18,000 मैंने आपसे लिए और 18,000 जाके सरकार को आपके बिहाफ पे जमा करा दिया. मेरी आउटवर्ड सप्लाई थी 1 लाख रुपीस. रिवर्स चार्ज बेसिस में इट इज द रिसिपिएंट हु हैज टू पे टैक्स. यानी जैसे कि लॉयर के केस में रिवर्स चार्ज लगता है. लॉयर के केस में
मैं अगर लॉयर हूं, मैंने आपको 1 लाख रुपीस का बिल दिया, मैं आपको बोलूंगा मैडम थैंक यू, 18% जाके सरकार को भी जमा करवा दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने तो टैक्स नहीं दिया, तुमने टैक्स दिया, लेकिन जो तुमने दिया तुमने अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे थोड़े ना दिया, तुमने अपनी इनवर्ड सप्लाईज पर दिया ना। सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज ही काउंट होती है एग्रीगेट टर्नओवर पे, ठीक है। फिर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एग्जेम्प्ट भी इंक्लूड होगी, एग्जेम्प्ट भी इंक्लूड होगी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमें जिन्होंने पढ़ा हुआ है जीरो रेटेड सप्लाई वगैरह होता है आपका एक्सपोर्ट और एसईजेड वगैरह, तो वो भी सारे के सारे इंक्लूड होंगे। एंड इंटरस्टेट सप्लाईज, ये भी आपके सारे के सारे इंक्लूड होंगे। तो बेसिकली मोस्टली सभी कुछ इंक्लूड करा जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। आपकी मतलब आपको ये चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है नहीं कराना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। वो 1,18,000 में सिर्फ 1 लाख काउंट होगा, 18,000 नहीं काउंट होगा। आइए, एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट turnover, aggregate turnover to include total turnover of all branches with same PAN। पूरा का पूरा पैन बेस्ड है। हम लोगों ने कॉम्पोजिशन पढ़ते टाइम भी डिटेल में ये बोला था, या तो पूरा का पूरा पैन अंदर है या तो पूरा का पूरा पैन बाहर है। तो आपके अलग अलग स्टेट्स का भी सीन है, तो आपको वही पैन बेस्ड सारी जगह पर कराना है। Aggregate turnover of person having the same PAN is to be computed on all India basis. For example, a dealer D has 2 offices, one in Rajasthan and another in MP. In order to determine whether D is liable for registration, turnover of both the offices would be taken into account, and only if the same exceeds 40, D is liable for registration. फिर outward suppliers tags on reverse charge basis to be included in turnover of supplier। lawyer के केस में वो supplier के में काउंट होगा। अगर मैं lawyer हूँ, आप आए कि 1 लाख रुपीस की सर्विसेज मैंने आपको बिल दिया 1 लाख का और बोला 18,000 जाके सरकार को जमा करवा दीजिएगा, तो 1 लाख रुपीस मेरे उसमें काउंट होगा। ओके, ये वाली चीज वैसे रेलेवेंट नहीं है, हम आगे जाके पढ़ेंगे किनको कंपलसरी नहीं है। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम काम करते हो तो आपको कंपलसरी नहीं है। ऐसे आरसीएम वाला भी एग्जाम्प्ट में काउंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल और जॉब वर्कर वाली रिलेशनशिप है। जॉब वर्कर बेसिकली अपने काम को आउटसोर्स करने ओरिएंटेड बातें होती है, तो वो वाले की बात कर रहा है। एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल्स। For example, Ragini Enterprises has appointed Kamal and Associates as its agent. All the supplies of goods by Kamal as agent of this will also be included in aggregate turnover of Messrs Kamal. ठीक है। अच्छा, वो नेक्स्ट में लिखा है फोर्थ में, supply of goods by job worker to be included in supplies of principal. The supply of goods after completion of job work by a registered job worker shall be treated as the supply of goods by the principal. The value of such goods shall not be included in aggregate turnover of the registered job worker. Aggregate turnover versus turnover in a state, एक बार पढ़ लेते हैं। The aggregate turnover is different from turnover in a state. The former is, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो एग्रीगेट टर्नओवर मोस्टली जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा, वो हेल्प होगा आपको रजिस्ट्रेशन वाली लायबिलिटी निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से। टर्नओवर इन स्टेट का अर्थ है कि आपका स्टेट में टर्नओवर कितना है, ये आपका इस्तेमाल होता है कॉम्पोजिशन टैक्स देने में। आइए, the aggregate turnover is different from turnover in a state. The former is used for determining the threshold limit for registration as well as eligibility for composition scheme. However, the composition levy as well as for option to pay tax at concessional rate under notification list would be calculated on the basis of turnover in the state. वही वो composition क्या कर रहा है। Beside this, in case of the distribution of credit that is attributable to 2 or more units of the person, the credit shall be distributed among such units on a pro rata basis, that is ratio of their respective turnover in state to the aggregate of turnover in state। ठीक है। फिर no centralized registration, जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। आइए एग्जांपल्स पढ़ते हैं। Example relating to threshold limit. Hemant of Himachal Pradesh is exclusively engaged in intrastate supply of furniture. His aggregate turnover in the current financial year is 25 lakhs. Okay. In view of the discussion in the above paras, the applicable threshold limit of Hemant is 40 lakhs, thus he is not liable to get registered. If in the above example, all other things remaining the same, Hemant is exclusively engaged in supply of ice cream, he will not be eligible for this 40 lakhs, उस पे वो default वाली 20 lakhs वाली apply होगी। And क्योंकि उसकी 25 है, उसे register कराना होगा।
If instead of ice cream, Hemant is exclusively engaged in supplying taxable services, the applicable threshold limit for registration will still be 20. Thus, Hemant will be liable to get registered. Okay. Further, if Hemant is engaged in supply of both taxable goods and services, the applicable threshold limit will be 20. ठीक है. Then next one is Sultan of Telangana is exclusively engaged in interstate supply of leather products. The aggregate turnover in the current financial year is 25 lakhs. Since Sultan is making taxable supplies to Telangana, he will not be eligible for higher threshold limit. वो आपको वहां से अच्छे से चेक करना होगा, वो याद करना होगा कहाँ पे 20 है 40 है एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. समझ में आया हमें? ठीक है, तो ये प्लीज देखिएगा अच्छे से, पढ़िएगा ये वाले एग्जाम्पल. फिर आइए आगे ऑन पॉइंट नंबर 2. Registration required only for a place of business from where taxable supply takes place. उन्हीं सारी जगह को ही रजिस्टर कराने की जरूरत है जहां से की taxable supply होती हो. A person is required to obtain registration with respect to each place of business in India from where a taxable supply has taken place. However, a supplier is not liable to obtain registration in a state from where he makes an exempt or non-taxable supply. ठीक है. Example, Mishra is engaged in supply of taxable goods in Maharashtra. It also supplies alcoholic liquor for human consumption from Nagaland. Now, this is something which is not liable to GST. Its turnover in the current financial year is 34 lakhs in Maharashtra and 8 lakhs in Nagaland. Since Mishra is exclusively engaged in making taxable supply of goods from Maharashtra, the applicable threshold limit is 40. However, the threshold limit will not be reduced to 10 क्योंकि वो जहां से वो सप्लाई करा that is a non-taxable supply. तो इससे थोड़ा बाहर टाइप ही निकल आया, बता रहे हैं. In the given case, in the aggregate turnover, Mishra exceeds the applicable threshold limit of 40. It is liable to obtain registration. आपको समझ में आया क्या चीज हुई? उसने बोला था अगर तुम टैक्सेबल सप्लाई करते हो किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट से, फिर तो रिड्यूस करना है. अब यहाँ पे तुम टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में नॉन टैक्सेबल वगैरह फिर भी प्लस होगी. तो थ्रेशोल्ड लिमिट इज स्टिल 40. The threshold limit did not get reduced to 10. The threshold limit is still 40. Basically now, but यहाँ पर फिर तुम्हारा aggregate turnover कितना हो गया? 34 plus 8 हो गया. 34 plus 8 हो गया 42, which is more than 40. इसीलिए वो हो गया. Okay. फिर उसके बाद आइए transfer of business, transferee to obtain fresh registration. क्योंकि it is essentially based on PAN. इसीलिए अगर आपने अपना बिजनेस किसी को बेचा है तो जिसने खरीदा है उसको नया रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होगा. ट्रांसफर परसुएंट टू स्कीम फॉर अमैलगमेशन डीमर्जर ट्रांसफरी लायबल टू बी रजिस्टर्ड. ठीक है. फिर आ जाइए आगे. पर्सन्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. ठीक है. ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि अगर हमारा टर्नओवर 10-20 लाख से ज्यादा है तो हमको कराना है. एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स में हूं तो मेरे लिए कुछ काफी सारे स्टेट में 40 हो जाता है, लेकिन वो आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको वगैरह पे ये वाली चीजें एप्लीकेबल नहीं है. फिर हमने पढ़ा कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या करना है, तो मोस्टली सभी कुछ काउंट करना है. टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये हो गया. ओके, तो बेसिकली उससे बाहर आता है कि हाँ अगर मैं कि अगर मेरे को चेक करना है कि मैं को अभी रजिस्ट्रेशन कराना है, तो अगर ये सब है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अब यहाँ पे पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर पढ़ेंगे किस किस को जो वहां पे फॉल कर रहा है उसके बावजूद रजिस्टर कराने की कंपल्शन नहीं है. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. हम लोगों ने एग्जेम्पशन वगैरह पढ़ा हुआ है. मान लो आपके पास कोई घर है जो आप रेंट आउट करते हो, थोड़ा बड़ा सा बढ़िया सा कोई घर है. अब 2 लाख रुपए महीने पर आपने उसको रेंट आउट करा हुआ है. बाकी आप अपना नॉर्मल जॉब वॉब बिजनेस जॉब वॉब करते हो नॉर्मल, तो नॉर्मल कोर्स में तुम लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होते. अब रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस इज एग्जेम्प्ट. तो 12 महीने के 2 लाख रुपए के हिसाब से 24 लाख रुपीज आए. अब क्योंकि वहां लिखा था कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर तुम्हारा 20 लाख के पर है तो तुमको कराना है, तो आपको कराना पड़ जाएगा. थियोरेटिकली आपको कराना पड़ जाएगा, लेकिन कराना पड़ता नहीं है. क्यों? बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट हेडिंग दैट वी आर डूइंग, पर्सन्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन. कुछ लोगों को ये सब चीजें कंडीशन क्वालिफाई होने के बावजूद रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है. जैसे एक है एग्जांपल,
अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट काम करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। भले ही तुम लाखों का करोड़ों का पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट काम करते हो, उसमें थोड़ा सा भी आ जाए ना अगर टैक्सेबल काम, तो रजिस्टर कराना पड़ेगा। मान लो मैं सिर्फ 50 लाख का एग्जेम्प्ट काम करता हूँ, मेरे को रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा। मान लो मैं 2 लाख का टैक्सेबल और 50 लाख का एग्जेम्प्ट काम करता हूँ तो कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में दोनों के दोनों इंक्लूड हैं। आइए एक बारी पढ़ते हैं। Who are the persons are not liable for registration under GST law? Persons not liable for registration. Persons not liable for registration. The following shall not be. कितनी बार पढ़ेंगे? With person exclusively making supply of non-taxable goods or services or both. अगर आप कोई ऐसी चीज का काम करते हैं जो कि टैक्सेबल नहीं है एंड एक्सक्लूसिवली उसी का काम करते हैं, तो आपको रजिस्टर कराने की कंपल्सन नहीं है। Any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax under this act or under the IGST Act. ठीक है। The person exclusively making supply of wholly exempted goods or services or both. अगर जो आप काम करते हैं अगर वो पूरी तरीके से exempt है तो भी आपको रजिस्टर कराने की कंपल्सन नहीं है। Any person engaged exclusively in making supply of goods or services or both that are wholly exempt from tax under this act और अंडर दी IGST एक्ट। अगर आप जो काम करते हैं पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है तब भी आपको रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं है। Agriculturalist to the extent of supply of produce out of cultivation of land. Agriculturalist means an individual or HUF who undertakes cultivation of land. Basically फार्मिंग वगैरह से अगर आपको इनकम होती है तो एक चीज का ध्यान रखें, this is only available to individuals and HUFs. बाकियों को नहीं है। अगर आप एक कंपनी वगैरह हैं और आप ये काम करते हैं एग्रीकल्चर ओरिएंटेड तो आपको रजिस्टर कराने वाली चीज कंपलसरी है। अगर आप एक इंडिविजुअल फार्मर हैं और आप भले ज्यादा का काम करते हैं तब भी आपको कंपलसरी नहीं है रजिस्टर कराना। क्या लिखा है? एग्रीकल्चर मींस एन इंडिविजुअल और HUF undertakes cultivation of land by own labor or by the labor of family or by servants on wages payable in cash or kind or by hired labor under personal supervision or the personal supervision of any member of family. अभी डिस्कस करते हैं इनका देखते क्या लिखा है? An agriculturalist is not liable to obtain registration under the act to the extent of supply for this. The scope of definition is restricted to an individual or HF. Okay. फिर लिखा है notified category of persons. The government may, on the recommendation of the council, by notification specify the category of person who may be exempted from obtaining registration. तो ये आया वो 40 लाख वाली लिमिट। फिर से supplier of goods, again this is basically exclusive supply of goods. Suppliers of goods having aggregate turnover not exceeding 40 lakhs exempt from obtaining registration. The central government has specified the following category of person as the category of person exempt from obtaining registration. Any person who is not engaged in exclusive supply of goods, ठीक है वो सेम ही बात है। Person making interstate supply of taxable service having aggregate turnover not exceeding 20 lakh exempt from obtaining registration. थोड़ा सा कटा हुआ है जिनके पास सॉफ्ट कॉपी है, but this is important. Person making interstate supply, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अभी ना थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों को ना कंपल्सरीली रजिस्टर कराना होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं पढ़ा हमने। उसके अंदर लिखा होता है इंटरस्टेट सप्लाई। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करा रहे हैं तो आपको रजिस्टर कराना कंपलसरी है। अच्छा, मतलब अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करूं या इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करूं, दोनों केसेस में कराना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पर एग्जेम्पशंस में डाल दिया गया कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो और 20 लाख तक का ही आपका काम है तो एग्जेम्प्ट है। तो मतलब एग्जेम्प्ट नहीं, सॉरी, तो आपको रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये 2-3 एस्पेक्ट्स का मिला जुलाकर कहानी ऐसी बनती है कि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो फिर तो रजिस्टर कराना ही है, भले ही 50,000 रुपए का काम करते हो। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो तो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख वगैरह आपके ऊपर अप्लाई होती है। समझ में आया हमें? तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब हम फिर से पढ़ेंगे इसी में 3-4 पेज आगे मैं फिर से पूरी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? बट ओके, फिर आ जाइए आगे।
However, aggregate value of such supplies to be computed on all India basis should not exceed 10 lakh in the case of special category states. ठीक है. फिर आगे आइए. Persons only engaged in making taxable supplies, total tax on which is liable to be paid on reverse charge, exempt from obtaining registration. This is again important. मैं ऐसा सा ही पॉइंट उस टाइम आपको लॉयर के केस में थोड़ा सा कहने का ट्राई कर रहा था. अगर आप जो काम करते हैं, अगर वो आरसीएम में आता है, पहले होता था पार्शियल रिवर्स चार्ज, टोटल रिवर्स चार्ज, वो सब खत्म हो गया, अब टोटल ही होता है अगर होता है तो, इसलिए आई विल नॉट स्पीक अबाउट दैट. अगर आप रिवर्स चार्ज वाला काम करते हैं, बेसिकली अगर आप एक लॉयर हैं तो आप अपनी जेब से तो टैक्स नहीं देंगे, आप उसको, उससे आप नॉर्मल पैसे 1 लाख लोगे और उसको बोलोगे भाई 18,000 तू जाके जमा करा. तो जब तो बेसिकली अगर मैं टैक्स ही नहीं देने वाला, तो सरकार ने कहा कि वी विल ट्रीट यू एज एग्जेम्प्ट. आपको ध्यान हो तो हमने आईटीसी के अंदर भी ये वाली चीज पढ़ी थी कि अगर आप ये कि अगर आप आरसीएम वाला काम करते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी. मतलब अगर आप आरसीएम वाला काम करते हैं तब भी आपको आईटीसी नहीं मिलता. ऐसे ही अगर इधर भी अगर जो आप काम करते हैं अगर वो आरसीएम वाला है, वी विल ट्रीट इट एज एग्जेम्प्ट इफेक्टिवली, एंड एग्जेम्प्ट वालों को रजिस्टर कराना नहीं होता. तो अगर मैं करोड़ों का भी काम करता हूं और मैं एक लॉयर हूं तो मेरे को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है. लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ और भी काम करता हूं तो मेरे लिए फिर कंपलसरी हो जाएगा रजिस्टर कराना. Persons only engaged in making taxable supplies, total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis, exempt from obtaining registration. The central government has specified the persons who are only engaged in making supplies of taxable goods or services, both the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services are both under section 9(3) of the said act as a category of person exempted from obtaining registration under the aforesaid act. Example, Vakil and Associates is a law firm engaged exclusively in supplying legal consultancy services liable to tax on reverse charge. Thus, it is exempt from registration as it is engaged exclusively in making supplies, tax on which is liable to be paid on reverse charge. फिर persons making interstate taxable supplies of notified handicraft goods up to ₹20 lakhs. वैसे मैंने आपको बोला थोड़ी सी देर पहले, अभी जस्ट पहले, कि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो कंपलसरीली कराना है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो तो बेसिक थ्रेशोल्ड अवेलेबल है. अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स इज गुड्स, तो उसका इंटरस्टेट करते हो तो नॉर्मली आपको कराना पड़ता, बट हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट वगैरह करने के हिसाब से अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करते हैं, इंटरस्टेट भी है, तब भी आपको 20 लाख और 10 लाख वगैरह तक का थ्रेशोल्ड अलाउड है. इसमें एक और चीज कंपल्शन है, आपको ई वे बिल कंपल्सरीली जनरेट करना होता है. ये चीज हम ई वे बिल के अंदर भी पढ़ेंगे. इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अगेन थोड़ा सा सिमिलर है. आप लोग ये दोनों के दोनों पॉइंट्स पढ़िए जो बॉक्सेस के अंदर.
तो जो नेक्स्ट है उसमें भी यही सब लिखा था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वील सी व्हाट दैट मींस। Being taxable supply of handicraft goods and handmade shawls, stole, etc. exempt from obtaining registration. Casual taxable person वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा ना घूम घूम कर बिजनेस करते हैं। आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मान लीजिए हरियाणा है, लेकिन जैसे आप जैसे साड़ी वगैरह के फेयर लगते हैं होटल्स एक्सेट्रा में, तो आप उस तरीके से एग्जीबिशंस में जा जाके सामान सेल करते हो, तो आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाते हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपल्सरीली रजिस्टर कराना होता है, लेकिन भाई अगर तुम ये हैंडमेड शॉल्स और स्टोल्स वगैरह वाला काम करते हो तो अगेन तुम 10-20 लाख तक तुम्हें कंपल्सरी नहीं है रजिस्टर कराना। ओके, फिर रजिस्ट्रेशन आगे क्या लिखा है, exemption available to person making exempt interstate supply of handicrafts, exemption in respect of interstate supply of specified goods made by craftsmen। ओके कुछ लिखा ठीक है। फिर आ जाइए आगे, job workers engaged in making interstate supply of services exempt from obtaining registration। The central government has specified the job workers engaged in making interstate supply of services to a registered person as a category of person exempted from obtaining registration. However, nothing contained in this notification shall apply to a job worker who is liable to be registered under 22(1) or who opts to take registration voluntarily under 25(3) of the said Act, or who is involved in making supply of service in relation to goods mentioned against here number 5. ठीक है, फिर आगे suppliers of services supplying services through an e-commerce platform exempt from obtaining registration। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। बेसिकली ई कॉमर्स के थ्रू आप गुड्स सप्लाई कर सकते हैं, आप सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग, आपको कंपल्सरीली रजिस्टर कराना होता है। सर्विसेज अगर आप करते हैं तो आपको थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन मिल जाती है। अब इसका थोड़ा पहले क्लासिफिकेशन होता था 9-5, कुछ को मिलती थी कुछ को नहीं मिलती थी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बट अब वो बाइफर्केशन करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, अब सभी को ये थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलता है। आइए, the central government has exempted the person making supplies of services other than supplies specified under 9(5) of the said act through an e-commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said act and having an aggregate turnover to be computed on all India basis not exceeding an amount of 20 lakhs in a financial year। भाई तो बेसिकली आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिल गया। अगर इंटरेस्ट अगर तुम Amazon पे गुड्स बेचते हो तो तुम्हें हाथ की हाथ रजिस्टर कराना होता है, अभी पढ़ेंगे आगे कंपलसरी में। सर्विसेज है तो आपको 10-20 लाख तक एग्जेम्पशन है। ओके, the services provided by commission agent for sale purchase of agriculture produce। पढ़ना देखना क्या है, चलो एक बार साथ साथ में ही पढ़ते हैं। This circular lays down the deciding factor to determine whether a particular principal agent relationship falls within the ambit of para 3। एक्चुअली आगे जाकर पढ़ेंगे कि एजेंट्स को भी रजिस्टर कराना होता है। Said circular clarifies it further taking the help of 4 different scenarios। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, देखिए क्या है। Mr. A sells agriculture produce by utilizing the service of Mr. B who is a commission agent as per the APMC Act of the state। Basically अच्छा A ने बेची और B एजेंट है। Mr. B identifies the buyers and sells the agriculture produce on behalf of Mr. A for which he charges a commission। As per APMC Act, the commission agent is the person who buys or sells agriculture produce on behalf of his principal or facilitates buying and selling of agriculture produce on behalf of his principal by way of commission or remuneration, commission or percentage upon this. This is in cases where the invoice is issued by Mr. B to the buyer, the former is an agent covered under para 3 of schedule 1। Mr. B invoice Mr. B ने कराई show। Okay. However, in cases where invoice is issued directly by Mr. A to the buyer, the commission agent doesn't fall under the category of agent covered in para 3। Okay. Since services by any APMC service provided by the commission agent for sale or purchase of agriculture produce are exempt from GST, such commission agents, even when they qualify as agent under schedule 1, are not liable to be registered। क्योंकि वहां पर हमने पढ़ा कि आपकी कमीशन एजेंट कमीशन ऑफ ये चीज एग्जेम्पशंस में पढ़ी कि कमीशन ऑफ ये सब बिकवाना इज एग्जेम्प्ट। फर्दर, according to 24/7, a person is liable for mandatory registration if he makes taxable supply of goods or services both on behalf of other taxable persons
Accordingly, the requirement of compulsory for commission agent under the said clause shall arise when both the following conditions are satisfied. कब? The principal should be a taxable person. The supplies made by a commission agent should be taxable. तो अगर ये दोनों conditions satisfy होंगी ना, तभी किसी agent को compulsorily register कराना है. क्या क्या? The principal should be a taxable person, and the supplies by the commission agent should be taxable. Generally, a commission agent under APMC Act makes supplies on behalf of an agriculturalist. As per provision of this, an agriculturalist who supplies produce out of cultivation of land is not liable. तो उस केस में एजेंट को भी नहीं कराना होगा कंपल्सरीली, क्योंकि वो प्रिंसिपल ही टैक्सेबल पर्सन नहीं है. समझ आया? देखो लिखा हुआ है ना कि जनरली जिसके बिहाफ पर बिकवाता है वो एक एग्रीकल्चरलिस्ट होता है, और एग्रीकल्चरलिस्ट को कंपल्सरी नहीं है. Okay. Thus, a commission agent who is making supplies on behalf of an agriculturalist, not a taxable person, is not liable for compulsory under this. However, where a commission agent is liable to pay tax under reverse charge, then agent will be required to get registered, etc. चलो एक बार इस पर आते हैं. देखिए illustration देखिए हल्की सी. Mr. A of Rajasthan has effected following supplies within the state of Rajasthan, required to determine whether he is required to obtain registration under GST law. Intrastate supply of goods, agriculture produce grown out of cultivation of land by family. अच्छा, तो हमें बेसिकली ये चेक करना है कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट भाई 10, 20, 40 लाख का क्या सीन है. इंटरस्टेट सप्लाई, तो वहां पर उसने कहा था कि सभी कुछ प्लस कर देते. तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन आउट ऑफ दिस प्लस होगा. इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर होली एग्जेम्प्टेड. इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल विद जीएसटी एट 5%. इंटरस्टेट सप्लाई सर्विस व्हिच आर होली एग्जेम्प्ट. लेकिन वही सारा का सारा इंक्लूड होता है, सारा मिला के 20,50,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है भाई, आपको वर्किंग नोट वगैरह लिखने होते हैं अच्छे से. ठीक है, तो ये भी पढ़िएगा. आई थिंक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन काफी सिमिलर सी है. ये पढ़िएगा, कुछ अच्छी अच्छी इलस्ट्रेशंस हैं. ये देखें, ये वाली ये एक ही बची. चलो आ जाओ देखें इलस्ट्रेशन 4 देखें. थोड़ी सी डिफरेंट सी है शायद, पता नहीं. आइए. Rishabh Enterprises, a sole proprietorship firm, started an air-conditioned restaurant in Virar, Maharashtra in the month of February, wherein the customers are served cooked food as well as cold drinks, non-alcoholic beverages. In March, the firm opened a liquor shop in Kohima, Nagaland for trading of alcoholic liquor for human consumption. तो एग्रीगेट टर्नओवर में तो वो इंक्लूड होता है, लेकिन उससे वो लिमिट रिड्यूस नहीं होती, ऐसा हमने वहां पर देखा था. Determine whether Rishabh is liable to be registered. February और March का इंडिविजुअली बताया गया आपको. Serving of cooked food and cold drinks non-alcoholic in Maharashtra, sale of alcoholic liquor in Nagaland 5 lakh. Supply of wholly exempt export of packed food from restaurant. Required to provide reasons for various items given above. Solution में, as per 22, a supplier is liable to be registered in the state union territory from where he makes a taxable supply of goods or services of both, with aggregate turnover in a financial year exceeds 20 lakhs. However, if such taxable supplies are made from any of the specified special category states, namely this, तो 10 lakh, in the given state वो वहाँ से taxable नहीं कर रहा, इसीलिए 40 लाख की ही लिमिट रहेगी. लेकिन ये गुड्स तो नहीं है, ये तो वो भी है. हाँ, तो ये सर्विसेज भी है, तो फिर 20 लाख की लिमिट हो जाएगी. अगर ये सिर्फ गुड्स कर रहा होता ना, तो होती है आपकी 40 लाख की. यहाँ पे थोड़ी सी भी सर्विसेज आ गई तो 20 लाख जाएगी. सॉरी. ठीक है, फिर आइए आगे. As per this, the aggregate turnover shall include this. देखिए आइडियली ना ये थ्योरी वगैरह पर हमें वर्क करना चाहिए, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ. अगर आपने करा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है, तो अब हम उसे और पॉलिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्किंग नोट्स वगैरह पे और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको लिखना चाहिए कि भाई देखो आपके एग्रीगेट में ये सारा का सारा ही काउंट होता है. The above is computed on all India basis. Further, the aggregate turnover excludes central tax, state tax, union territory tax, integrated tax, and cess. Moreover, the value of inward supplies on which tax is payable under reverse charge is not taken into account for calculation of aggregate turnover. In the light of aforementioned provisions, the aggregate turnover of Rishabh is computed as under. Computation of aggregate turnover
तो देखो इसने फरवरी करा, मतलब ठीक है फरवरी मार्च, आई थिंक ये फिगर्स गिवन ही थी, फरवरी की 550 एज इट इज गिवन थी ये। तो अगर हम फरवरी की बात करें, सप्लाई होली एग्जेम्प्ट दिस 8 लाख, तो फरवरी तक तो कराने की जरूरत नहीं है। फिर मार्च आया, मार्च में और 6.5 लाख का काम हो गया, तो ये 12 लाख हो गया। ये भी प्लस होगा, आपको ध्यान होगा उस वाली इलस्ट्रेशन में, वहां पे उसने वो अल्कोहलिक लिख करके 8 लाख रुपए प्लस करे थे, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में तो प्लस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली मार्च में ये 20 लाख क्रॉस कर रहा है, बेसिकली आपको रजिस्टर कराना होगा। समझ आया समझ आया समझ आया, पढ़ लो एक बारी। सही है, चलिए अब आते हैं आगे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पहले। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, किस किस को कंपल्सरीली रजिस्टर कराना है। आइए, बेसिकली इन लोगों पर इफेक्टिवली ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स वगैरह अप्लाई नहीं होती। Okay. Compulsory registration in certain cases, the following category of persons are mandatorily required to obtain registration under GST irrespective of their turnover. Okay. Person making any interstate supply, जो मैंने आपको उस टाइम बताया था जब हम इंटरस्टेट सप्लाई सर्विस के बारे में बात कर रहे थे। आप कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको मैंडेटरीली रजिस्टर कराना है, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो चाहे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो। बट इसीलिए ऊपर उन्होंने वहां पे एग्जेम्पशंस में इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज को एक्सक्लूड करा हुआ था, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अभी भी है। तो बेसिकली वही जो मैंने पहले कहा, मैं फिर से बोलूं, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स जितनी सी भी करते हो तो कराना है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में तुम्हें थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी। आइए, it must be noted that central government has granted exemption from registration to person making interstate supply of taxable service having aggregate turnover not exceeding 20 lakh, 10 lakh in case of special category states of Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura. Okay. Casual taxable person, जैसा मैंने अगेन आपको बताया था, casual taxable person को भी compulsorily register कराना होता है। CTP who does not have a fixed place of business in the state or union territory from where he wants to make supply. However, threshold limit of 2010 in this is available in case of CTP who is making interstate supply of notified handicraft goods. Okay. Persons who are required to pay tax under reverse charge, that is recipient of supply is liable to pay tax. Okay. The person who are required to pay tax under 9(5), that is ECO, is required to pay tax on specified services. तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को आप मान लो हमेशा ही कराना होता है, थोड़ा 1-8% यहाँ वहां हो जाती है ये वाली बात, बट ठीक है ठीक है। फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसको बहुत ही फेमसली एनआरटीपी बोला जाता है। आगे हम लोग ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी पे बातें करेंगे। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी और एनआरटीपी को भी, दोनों को ही कंपल्सरीली रजिस्टर कराना। ओके। NRTP making taxable supply if persons are required to deduct tax under 51 whether or not separately registered under this act। तो अगर आपको TDS काटना है, अगर आपको TDS काटना है तब भी आपको कंपल्सरीली रजिस्टर कराना होता है।
Okay. With persons who make taxable supply of goods or services both on behalf of other taxable person, whether as an agent or otherwise. इसीलिए ऊपर वो लिखा हुआ था, जब वो एग्रीकल्चरलिस्ट के बारे में लिखा हुआ था, एजेंट्स को भी कंपल्सरीली रजिस्टर कराना होता है. ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये हम लोगों ने ITC के लास्ट में पढ़ा था जब हमने बात करी थी कि कोई हेड ऑफिस वगैरह होता है, वो टिपिकली सारी परचेजेस कर रहा होता है, तो उसके भर भर कर ITC होता है, लेकिन वो यूज होता है आपके अलग अलग ब्रांचेस में. तो ISD is able to distribute that credit. That head office basically distributes that credit to the various ABCD branches. ISD को भी compulsorily register कराना होता है irrespective of the turnover etc. ISD, whether or not separately registered under this act, persons who supply goods or services or both other than supply specified under 9(5) through such ECO who is required to collect tax at source under section 52. Persons who are suppliers of services and supplying services through ECO are not required to register under GST if their aggregate turnover is less than 20 lakhs. तो यही मैं आपको कह रहा था उस टाइम. वैसे बोलते हैं कि अगर तुम ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ भी सप्लाई करते हो तो तुम्हें कंपल्सरीली रजिस्टर कराना है, लेकिन बोला कि सर्विस सप्लायर्स थ्रू ईसीओ को 20 लाख 10 लाख तक की थ्रेशोल्ड है. बेसिकली एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं. मान लीजिए कोई टैक्सी चलाता है उबर के थ्रू, तो उबर इज एन ईसीओ. यू आर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज थ्रू एन ईसीओ, फिर तो देखो तुम्हें कंपल्सरीली रजिस्टर कराना पड़ेगा. बट नहीं, आपको 10-20 लाख की बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी. हाँ, अगर आप गुड्स प्रोवाइड करते हैं तो आपको कंपल्सरीली रजिस्टर कराना होगा irrespective of your turnover etc. इसको मैं ऐसे भी याद कर रहा होता हूँ कि वैसे भी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पर तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन थी. अगर मैं ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड करता हूँ तो वैसे भी मैं घंटा इंश्योर कर सकता हूँ कि भाई इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है, क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. बेसिकली अगर आप ईसीओ के थ्रू गुड्स सप्लाई करते हैं तो आपको कंपल्सरीली रजिस्टर कराना है. ओके. For every ECO who is required to collect tax at source under section 52, the small ECO who are not required to collect tax would now be eligible for availing threshold exemption limit for registration purposes. Okay, we'll see. Every person supplying OIDR services from a place outside India to a person in India other than a registered person. OIDR के बारे में हमारी बात हुई है. आपके नेटफ्लिक्स और ये और वो ये सारे के सारे OIDR सर्विसेज के अंदर आते हैं. अगर आप OIDR सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप बेसिकली बाहर हैं और आप यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करते हैं. अगर आप जिनको प्रोवाइड करते हैं अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, उनसे टैक्स ले लेंगे हम लोग. लेकिन उसके बहुत सारे यूजर हमारे और आपके जैसे अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स होते हैं. अब हम तो टैक्स देंगे नहीं एज सच, तो ऐसे में कंपलसरी है उस वाले OIDR सर्विस प्रोवाइडर को जो बाहर बैठा है कि तुम इंडिया में रजिस्टर कराओ और उन लोगों के बिहाफ पे टैक्स दो. समझ में आया हमें? बेसिकली नेटफ्लिक्स को, गूगल को, इन्हें इंडिया में रजिस्टर करवा के ये सब बताना होगा कि भाई देखो इतने इतने हमें इंडिया से मिले हैं जो रजिस्टर्ड लोग नहीं है, उस पे इतना इतना ये टैक्स बनता है, ये लोग वो लोग हमसे लेके जमा कराएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये एक बारी पढ़िए प्लीज फिर से, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट. Amazon क्या सब नहीं. द पर्सन इज सीन एज अ सप्लायर. मतलब बेसिकली जो सेलर है ऑन Amazon, ही इज द सप्लायर थ्रू ECO. ही इज सप्लाइंग गुड्स थ्रू ECO. नहीं. सर्विस सप्लायर हो गया उबर. तो इफ यू आर सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू उबर, आप टैक्सी वगैरह चलाते हैं, देन आपके ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट है. अगर आप एक सेलर ऑफ गुड्स हैं जो Amazon वगैरह के थ्रू सेल करते हैं तो आपको कंपल्सरी रजिस्टर.
कुछ रहता है, सेकंड हैंड पोस्ट फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे बेचते हैं, ठीक है? तुम कहाँ बेचते हो फ्लिपकार्ट पर सेकंड हैंड? उसको वापस करते हो। बेचना वुड बी डिफरेंट। बेचते तुम OLX पे हो। तुम ये नहीं कह सकते मैं फ्लिपकार्ट पर या अमेज़न पर बेचता हूँ, तुम उसको वापस कर रहे हो। वो अलग चीज़। OLX वालों पे उसमें भी फिर वो सेकंड हैंड गुड्स वाली चीज पर फिर थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हमारा मिस हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई में ना, वो लास्ट का एक छोटा सा एक टॉपिक था, वो थोड़ा सा मिस हो गया। चलिए अब इसके बाद आइए थोड़ा सा बोरिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। Explain the procedure to obtain registration under CGST Act. किस तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चलो ठीक है एक बार ही पढ़ते हैं। एप्लीकेशन टू बी मेड विद इन 30 days, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है बेसिकली, ठीक है? 30 डेज के अंदर अंदर, ये हमने और भी पॉइंट्स पे डिस्कस करा था। आइए, एप्लीकेशन टू बी मेड विद इन 30 days in every state, union, territory in which such person is liable for registration under section 25(1). Every person who is liable to be registered shall apply for registration in every state or union territory in which he is so liable within 30 days from the date on which he becomes liable to registration, in such manner and subject to such condition as may be prescribed. Supplier making supply from territorial waters of India, तो आपको जो closest वो है, जो भी closest state है वहां पर कराना है, ठीक है? फिर सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर SEZ एंड नॉन SEZ यूनिट्स। होने को तो SEZ उसी स्टेट में है, तो क्या अलग अलग कराना है? हाँ, तो SEZ थोड़ा अलग तरीके से फंक्शन करता है, तो इसलिए SEZ वालों को आपको अलग से कराना है। मतलब सेम ही स्टेट में अगर तुम्हारा नॉर्मल और SEZ दोनों है तो दोनों को अलग अलग रजिस्टर कराना है। ओके, फिर 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, जैसा हमने पहले भी पढ़ा, एक बार पढ़ते चलो। A person seeking registration under this act shall be granted a single registration in a state or union territory. Thus, if within a state an entity with different branches would have single registration, wherein it can declare one place as principal place of business and other branch as additional place of business. Separate registration for multiple place of business in a state or union territory. A person having multiple place of business, okay. However, separate registration for each place of business shall be granted, provided all separately registered places of business of such person, where tax and supply of goods services are both made to another registered place of business of such person and issue a tax invoice. Separate registration application need to be filed for each place of business. Composition levy in case of separate for multiple, तो कॉम्पोजिशन में ध्यान होगा तो पूरा का पूरा पैन कॉम्पोजिशन के अंदर होता है, तो पूरा का पूरा पैन कॉम्पोजिशन के बाहर होता है। तो किसी एक ने भी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया तो तुम ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन में आ गए, एक ने भी ऑप्ट आउट किया तो तुम पूरे के पूरे बाहर निकल गए। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया है तब भी आपके ऊपर सारे के सारे रजिस्ट्रेशन वाली चीजें अप्लाई करती है। आप वहां पे जाके रियायत नहीं मांग सकते। अरे मैं तो वैसे ही करा था, सिर्फ चेक करना था, बेटे का मन था, देखें पापा GST में आया, हम भी होंगे, नहीं। चलो, इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है? The person having more than one registration, each such registration to be treated as distinct person, ये हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है। बेसिकली डिस्टिंक्ट पर्सन आप ही की दो अलग अलग एंटिटीज वगैरह होती हैं, तो वो रिलेटेड पर्सन वगैरह के रूप में ऑपरेट करता है। Premises in separate state is deemed distinct person. PAN mandatory for obtaining registration. अभी तक हमारी काफी बारी बात हुई that it is essentially a PAN based system. चलिए फिर आगे NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब कोई बाहर का बंदा है, उसके पास इंडिया का पैन कहाँ से आएगा? तो वो किसी और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर भी ले सकता है। फिर फेलियर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अगर हमें लगता है कि आपका बनता है और आपने करवाया हुआ नहीं है तो हम पकड़ कर देंगे। Where a person is liable to be registered under this act fails to obtain registration, the proper officer may, without prejudice to any action which may be taken under this act or under any other law for the time being in force,
proceed to register such person in such manner as may be prescribed. UIN, unique identity number, to be granted to specialized agency of UNO, consulate, embassy of foreign country, other notified person. क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. जैसे एम्बेसी वगैरह होती हैं, आप लोगों ने भी चलते फिरते देखा होगा कुछ कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, एसयूवीज पे वो ऑरेंज कह रहा हूँ, ब्लू, लाइट ब्लूइश कलर की वो नंबर प्लेट होती है. तो एज अ किड मेरे को ये बताया गया था कि इन पे ट्रैफिक रूल्स अप्लाई नहीं हो. ठीक है, ठीक है. बेसिकली ये अलग अलग एम्बेसीज वाले हैं, तो इनसे टैक्सेस नहीं लेने हैं. दैट इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटी एक्सेट्रा, कि हाँ भाई इनसे कोई टैक्सेस वगैरह चार्ज नहीं कर. अब जीएसटी, अब वो किसी दुकान, अब वो रेस्टोरेंट गया, उसने कुछ खाया, अब सारी जगह वो यहाँ पर छपवा ले कि जा तो मेरी गाड़ी देख कर पहले उस पे वो ब्लू वाली नंबर प्लेट है, तो टैक्स कैसे मांग रहा है मेरे से. फिर वो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेगा. बकवास बातें. बेसिकली तो इंडिया ने प्रोसीजर अपनाया है कि सर आपकी थोड़ी सी नाक नीची होगी, लेकिन आप टैक्स की पेमेंट कर दो, आगे हम आपको रिफंड ग्रांट कर देंगे, आप घबराओ मत. तो क्योंकि तुम एज एन एम्बेसी आगे जाके यू वांट टू क्लेम रिफंड ऑफ टैक्सेस दैट यू हैव पेड, इसीलिए तुम किसी ना किसी फॉर्म में रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी तुम ट्रैकेबल हो. तो इसीलिए बोला गया कि अगर तुम यूएनओ, कॉन्सुलेट, एम्बेसी वगैरह हो, तो हम तुम्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर नाम की चीज देंगे, जो इफेक्टिवली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टाइप की ही चीज है. आप जब भी जो भी खरीदे ना, वो आपको इनवॉइस वगैरह देगा, आपसे जीएसटी लेगा, तो वहां पे आप अपना ही नंबर मार आना बस, वो वहां पे आपके नाम से डिपॉजिट करवा देगा. हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपने दिया, हम आपको रिफंड ग्रांट कर देंगे. आइए, UIN to be granted to specialized agency of UNO, consulate, embassy of foreign country, other notified person, notwithstanding anything contained in this, any specialized agency of UNO or any multilateral financial institution and organization identified under the UN business, consulate or embassy of foreign countries, and any other person or class of person as may be notified by the commissioner, shall be granted a UIN in such manner and for such purposes, including refund of taxes on notified supplies of goods or services are both received by them as might be prescribed. This UIN is needed for claiming refund of taxes paid on notified supplies of goods or services received by them and for such purpose. Mainly, okay. फिर RC और UIN to be granted or rejected after due verification, proper verification वगैरह के बाद करेंगे, लेकिन 3 ही दिनों के अंदर. तो बेसिकली 3 एक दिनों में तो वो कुछ करेंगे नहीं, वो बाय डिफॉल्ट ग्रांट कर देंगे, फिर आगे जाके और प्रोसीजर अपना कुछ करेंगे. RC to be issued in prescribed form. फिर RC UIN not granted within prescribed period, then that is deemed to be granted. ऊपर लिखा था ना कि 3 दिनों में आपके पास आ जाएगा, अगर वो 3 दिनों में ग्रांट नहीं होता है तो deemed granted माना जाएगा. ओके, फिर आगे explain the procedure for making application. ये भी procedural बातें हैं. Application, declaration of PAN, mobile number, email mandatory. Every person other than an NRTP, a person required to deduct tax, a person required to collect tax, a person applying YDR, ठीक है, who is liable to be compulsorily registered under 25(1), and every person seeking voluntary registration shall, before applying this, declare his PAN, mobile number, email address, and state in Part A of GST Reg 01 on the common portal, either directly or through a facilitation center notified by the commissioner. Separate application for registration as ISD. अगर आप चलो ठीक है, फिर validation of PAN or mobile number, email. The PAN shall be validated online by the common portal from the database maintained by the CBDT. The mobile number declared as above will be verified through OTP. मैंने ना OTP पे बहुत बढ़िया जो पढ़ा था कहीं पे कि OTP भेजते टाइम वो बेचारा कहता है do not share with anyone, और वही होता है OTP के साथ. ज्यादातर OTP के साथ यही होता है. फोन आया बेटा, OTP आया होगा, हाँ ये है, तो मैं साफ लिखा. चलो इतना फनी है यार, क्लासरूम में ना बेटर होता है मारना जोक्स, यहाँ पे कोई वही नहीं. चलो सॉरी, कैंसिल. ओके, हाँ चलो ठीक है, OTP. ओके, तो उसके बाद टेम्परेरी रेफरेंस नंबर. ओके, फिर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन.
ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्नॉलेजमेंट आएगी आपके पास कि हाँ भाई ऐसे ऐसे आपने करा है अप्लाई, बधाई। तो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रॉब्ली कल कि ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स क्या होता है। चलो मैं थोड़ा सा बताते हैं, कल फिर से डिस्कस करेंगे। ऐसे लोग जो और स्टेट्स में घूम घूम कर काम कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए भाई अगर आप कपड़ा या ये साड़ी या इस टाइप की कुछ चीजें सेल कर रहे हैं, साथ में साड़ी मैंने काफी बार बोला बिकॉज उसको एग्जीबिशन वगैरह बहुत ही कॉमन चीज है। अगर आप इनमें घूम घूम के सामान बेचते हैं तो आप अलग अलग स्टेट्स में जाकर करते हैं काम, तो आप तो देन आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाते हैं। आपको एडवांस में ही बताना होता है कि मेरा एस्टिमेटेड सप्लाई की वैल्यू कितनी होगी, एस्टिमेटेड उस पर टैक्स वगैरह कितना बनेगा, और वो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही जमा भी कराना होता है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ साथ। अब ये ना थोड़ी सी विशियस साइकिल हो गई, तुम रजिस्टर कराने जाओ तो वो बोलेंगे टैक्स क्या है, तुम टैक्स जमा कराने जाओ तो बोलेंगे भाई तू है कौन कुछ। तो इसीलिए अगर आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में कराना है तो आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर देंगे, उस टेम्परेरी रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट वहां जाके टैक्स डिपॉजिट कराओ, फिर वो दिखाओ इनको कि देख भाई इसके अगेंस्ट तू चेक करा, मैंने जमा करा दिया है, फिर वो आपका प्रोसीजर बनाएंगे। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, a person applying for registration as a casual taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making advance deposit of tax in accordance with provisions of 27, and the acknowledgement shall be issued electronically only after the said deposit। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। वैसे इसके बाद का ये वाला पेज आप रीड कर सकते हो खुद से। तो इसके बाद आगे ना कुछ चार्ट बने हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, आई थिंक ये सब भी पढ़ सकते हो आप लोग। चाहो तो ये वाले चार्ट्स पे ही थोड़ा सा वर्क कर लीजिएगा, जो थोड़ा बहुत यहाँ पर मिसिंग हो तो आगे हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले वो जो एक डब्बो में एग्जामिशन टाइप का था कि किस किस को कंपल्सरी नहीं है, फिर बीच में जो 4-5 इलस्ट्रेशंस थी। ठीक है, ओवरऑल इट इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। कल फिर कंटिन्यू करते हैं, और फिर कल हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा उठा लें। मैं एक बार देखता हूँ। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी वगैरह में थोड़ा सा करता हूँ प्लान, ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज्यादा हो जाए, तो अभी 3-4-5 दिन, आई डोंट नो, 3-4 दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ना थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स जाएंगे, तो उसमें भी चैप्टर वाइज विल नॉट मेक टू मच सेंस। विल सी। रजिस्ट्रेशन का तो स्टैंड अलोन टेस्ट करेंगे जब भी करेंगे नेक्स्ट 3-4 दिनों में, या 2-3-4 दिनों में जब भी, बट इसका तो स्टैंड अलोन टेस्ट करेंगे। ये तो बड़ा सा और इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है। इसके सिवा जो बाकी के हैं वो हम लोग थोड़ा सा आई थिंक थोड़े कंबाइन करते हुए करेंगे। ठीक है, तो सब लोग प्लीज पढ़िएगा अच्छे से। एंड हाँ, अगर मतलब बेसिकली बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन आई थिंक ऑब्वियसली थोड़ा और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, कि अगर एक ही ग्रुप पर फोकस कर रहे थे तो फिर दूसरे वाले पर भी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आई थिंक वो चीजें हेल्पफुल रहेंगी आगे जाके। as we come closer to the exam, you can bring your primary focus back on your primary aim, but at least इस बीच में आई थिंक अगर एक आध चीजें और उठा ले तो उसका नुकसान नहीं है। मैं उसका थोड़ा सा एक बार प्लान करता हूँ, क्योंकि लोगों से मेरे को डिस्कस भी करना है, संचिता से भी एक बारी बात करता हूँ, तो उनके थोड़ा सा फ्रेश एक दो क्लासेस हम लोग थोड़ा सा प्लान करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। चलो ठीक है, मिलते हैं। चलिए, टेक केयर एवरीबॉडी, मिलते हैं फिर कल। चलो बाय बाय। Thank you.